questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today. you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States are of you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If West you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of accept times that thank there, you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You I'm- don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. ट्रंप साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर हमने साथ ना दिया होता, समर्थन ना दिया होता, तो 2 हफ्ते में ही जंग खत्म हो जाती। उमाशंकर, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप को ये टीस है कि $350 बिलियन हमने दिए। जेलेंस्की कह रहे हैं भाई हमें बोलने का मौका दे दिया, आपने हमें बुलाया है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई चांस ही नहीं है, ये जुआ मत खेलिए। उमाशंकर, अब आगे समझाइए क्या होगा। जी देखिए, अब जब बातचीत का आधार इस तरह का बना है तो आगे अब क्या होगा ये तो कहने की बात है, क्योंकि देखिए जेडी वेंस को ये कहना पड़ा कि अमेरिकी मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अब बात ना हो, और फिर ट्रंप ने ये भी कहा कि अच्छी बात है कि अमेरिकी मीडिया के सामने ये बात हुई। तो जब बातचीत की शुरुआत इस तरीके की हुई है तो अंजाम क्या होगा ये तो
अब कुछ घंटों के बाद ही पता चलेगा, जब औपचारिक तौर पे रेयर अर्थ डील को लेकर बातचीत होगी। और क्योंकि लगातार जोर ज़ेलेंस्की का इस बात को लेकर रहा है कि अमेरिका से एक सिक्योरिटी गारंटी मिले, जिसको लेकर कि अमेरिका तैयार नहीं है, ट्रंप तैयार नहीं है। और ट्रंप अपनी बात में बहुत साफगोई से अपना रुख रखते नजर आए हैं। वो पहले से ही कह रहे हैं कि जो 350 बिलियन, हालांकि ये जो रकम है ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि 67.6 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद की बात तो यूक्रेन की तरफ से की जाती है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि पूरी जो सैन्य मदद चली अमेरिका से, वो पूरी तरह से यूक्रेन तक नहीं पहुंची। तो बीच में करप्शन का भी एक बहुत बड़ा मामला है, जो अमेरिका के पार्ट पे है या यूक्रेन के अधिकारियों के पार्ट पे है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। तो ट्रंप लेकिन 350 बिलियन की बात कर रहे हैं, जिसको कि ज़ेलेंस्की नकारते रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 100 बिलियन के आसपास की जो सैन्य सहायता है वो मिली, जिसमें से 67 बिलियन के आसपास की सहायता जो है यूक्रेन को मिली। तो वो बहस अपनी जगह है। इसलिए 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो एक संसाधनों का जो डील है, समझौता है, वो ट्रंप चाहते हैं। हालांकि 500 बिलियन डॉलर के डील की जो शर्त है उसको ड्रॉप कर दिया गया था और ये कहा गया था कि एक फंड बनाया जाएगा अमेरिकी नियम के हिसाब से, जिसमें कि अपने राजकीय जो कोष है उसमें से 50% जो प्राकृतिक संसाधन जिसपे कि यूक्रेन की सरकार का हक है, उसका 50% पैसा जो है वो यूक्रेन देगा। तो इस तरह के निटी-गिटी के साथ समझौते पे बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो बहस जो है वो शुरुआत हो गई इस तरह की, जिसमें कि तीनों आपस में उलझते नजर आए। ज़ेलेंस्की तो अपनी बात रखने की कोशिश नजर आए, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप जिस तरह से उनकी बात को काटते, और जेडी वेंस जो है वो भी अपने राष्ट्रपति के साथ ज़ेलेंस्की को घेरते नजर आए। तो मोटे तौर पे ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि जिन शर्तों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, और उन्होंने इस संबोधन के दौरान भी वो कहा कि वो पहले से कह रहे थे कि राष्ट्रपति हुए होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता, और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने 24 घंटे में युद्ध खत्म कराने की बात की थी। तो ये एक मौका है जहां पर युद्ध किस दिशा में जाएगा, युद्ध विराम कब होगा, किन शर्तों के आधार पे होगा। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो है जब व्हाइट हाउस पहुंचे हैं ट्रंप से मिलने के लिए ज़ेलेंस्की, तो ये एक मौका था जहां पे युद्ध विराम को लेकर आगे की बात होती। जो रेयर अर्थ डील है वो तो होता ही, लेकिन इसके बाद बातचीत आगे बढ़ती। लेकिन जिस तरह की नरमी के संकेत जो है वो ज़ेलेंस्की की तरफ से नहीं दिए गए। ये बात सच है कि उनके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से यूरोपीय देशों ने भी उनके साथ एकजुटता दिखाई है, यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई है, लेकिन मदद के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ देने के पास यूरोपियन कंट्रीज को भी नहीं है। और ये बात अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अच्छी तरह समझते हैं। तभी उन्होंने एक तरह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को घेरने की कोशिश की और बार बार ये कहा है कि आपके हाथ में कोई कार्ड नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पे आप बार्गेन कर सकें। आप हमारी मदद के आधार पर चलते रहे, और हमने जो मदद दी उसके बूते आप सैन्य मैदान में टिके रहे, रूस के सामने टिके रहे। इसका एक दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है कि किस तरीके से राष्ट्रपति, जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश ट्रंप जो है वो करते नजर आए हैं। कहा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, शुरुआत में उन्होंने कहा था, और उसके बाद वो रूस के साथ भी डील करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने जब एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि रूस और अमेरिका मिलकर प्राकृतिक संसाधनों का साझा जो दोहन है वो कर सकते हैं, न सिर्फ रूस में बल्कि जो यूक्रेन की जमीन जो कि रूस के कब्जे में है, जहां पे कि बहुत सारे माइंस और मिनरल्स के ठिकाने हैं, वो ऑफर जब रूस की तरफ से आया था उसके बाद ये भी माना गया कि ज़ेलेंस्की पर भी इस बात का दबाव पड़ा, और जो जिस समझौते को रेयर अर्थ समझौते को वो सिरे से खारिज कर रहे थे, वो उस समझौते को तैयार हुए और आज चलकर वो अमेरिका तक पहुंच गए। लेकिन जैसा कि हम लगातार अपने मैं उमाशंकर एक बार मैं फिर से यूरोप के सवाल पर आपको ले जाना चाहता हूं। या तो ट्रंप ये समझ गए हैं कि भाई मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वो कह रहे हैं साफ साफ, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, आप हमें मत सिखाइए क्या करना है, युद्ध विराम तो होके रहेगा। ज़ेलेंस्की कह रहे भाई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने पुतिन को आज भी हत्यारा और आतंकी कहा है। अब मेरा सवाल यूरोप को लेकर के है कि यूरोप के क्या सारे देश ट्रंप के साथ खड़े हो जाएंगे जो ज़ेलेंस्की का समर्थन करते रहे, या फिर अब इसमें ट्रंप या फिर यूरोप के तमाम देश ट्रंप के सामने खड़े होंगे, या ज़ेलेंस्की के साथ ही होगा क्या? यूरोपीय देशों का रुख क्या रहेगा? जी देखिए, यूरोपीय देशों का रुख अभी तक तो यूक्रेन के साथ पूरी तरह से खड़े नजर आने का है, लेकिन जहां तक बात आर्थिक सहायता की है, सैन्य सहायता की है, तो इसको लेकर यूरोप के देशों में एकजुटता नहीं है। कई सारे देश चाहते हैं कि जो सैन्य मदद है यूक्रेन की वो बढ़ाई जाए, लेकिन कई देश जिनकी सीमा खासतौर पे रूस से नहीं लगती और जो रूस की सीमा से काफी दूर हैं, उनको लगता है
कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने भी खड़े लहजों में अपनी बात रखी थी और यूक्रेन के साथ साथ दिखाया था। कल जब यूके के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी यूक्रेन की बात की, लेकिन इनकी जो भाषा है वो काफी नरम थी और सबको जो डर है ट्रंप के टैक्स का, क्योंकि यूरोप पे भी टैक्स लगाने की बात वो कर चुके हैं, 25% टैक्स की बात ट्रंप जो है वो कर चुके हैं, तो सबको टैक्स का डर सता रहा है यूरोपियन देशों को। और एक तो ट्रंप से नजदीकी दिखाने की भी कोशिश कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से है, और दूसरी तरफ जिन देशों को लगता है कि ट्रंप की आज यूक्रेन की आज मदद न की जाए तो कल को रूस जो है यूक्रेन की जमीन से आगे बढ़कर उनकी तरफ दांव खेल सकता है, तो वो चाहते हैं, एस्टोनिया जैसे देश चाहते हैं कि यूक्रेन की पूरी तरह से मदद की जाए। तो यूरोप के बीच आपस में जो मतभेद हैं और उसका भी फायदा जो है वो ट्रंप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने सख्त लहजे में राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा है कि आप हमारे बिना चल नहीं सकते। तो यूरोप अपने उलझनों में उलझा हुआ है। उसके पास ये जरूर है कि वो एक फौज के साथ रूस के खिलाफ खड़ा है और यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन पूरी की पूरी बात जो है वो अर्थव्यवस्था अर्थ पे आके टिक जाती है, क्योंकि लंबी लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और वो एक बड़ा जो हिस्सा है वो अमेरिका दे रहा था, जिस पर रोक लगाने की बात ट्रंप ने कर दी। तो ये भी माना जाता है कि जब अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी तो यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा रूस के हमलों को झेलने का और उसको घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। तो ये अमेरिकी ताकत है जिसको दिखाने की कोशिश इस बातचीत के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी।